after a powerful Vande Mataram song that was shown by the sir. So after that, very good afternoon to all of you and a warm welcome to all to the powerful uh, FDP, 22nd FDP the, of, of the Faculty Development Program. I am Assistant Professor Smita Nair, and it's my privilege to welcome and introduce Sir Dr. Rajkumar Kole sir, the founder and the principal of Vande Mataram Degree College, and Prerna Madam, our secretary. Speaking about principal sir, he is a very eminent, along with the list of degrees and qualifications he has. He is a very good speaker, eminent speaker, and has organized many webinars during the pandemic. And sir and madam are living examples of the qualities, 21 qualities that we have seen till now. It is not, I've seen many people preaching, but they are the living qualities. Whatever tips madam gives, she practices them. And whatever tips sir is giving through their experiences and their ups and downs that they have seen through in their life, that is being actually what that is what they are. So as a head of the family of the JMF family, sir is a very calm person, and with the same calmness, he will give solution to any problems that we can approach him for the any of the problems that we come across. And from sir and madam, I have learned how to manage the ups and downs and always be positive in life. Sir is a successful entrepreneur. As you all must be knowing, he is the founder of this college and this trust. And it is really successful. We have many branches, we have many students, and we'll be starting with many more branches also. Okay. And in this pandemic, he has been helping people in need generously and been organizing. In fact, he has organized a antigen testing center also we had one day for the nearby people, and in whatever way he could. And now this FDP has been organized to handle the mental part, mental to take care of the mental health and how to improve your life, and how to after this pandemic also how to improve your life, and how to live a better life and to be a good human being. Now, as we are nearing to the finishing point of the FDP, let us learn from Sir what he has to say about the letter V. Over to you, Sir. Okay, thank you, Smita, Thank you, sir. for your good words for all the people. A lot of thanks to you. Now I would like to request क्षितिज, just you sum up within 2 minutes. क्षितिज, आप अपना अनुभव सुनाइए. पिछले 22 दिन से आप अपने मम्मी के साथ बैठते हो. Please go ahead. Good morning, sir. Good afternoon, sir, respected sir, madam, and all my dear teachers, my friends, and all the audience. My name is Shitish. I'm from class 8. I'm very glad to share my experience. Daily, I'm waiting for 4 o'clock. I and my granny are very curious about the new words, new stories, and new places to visit in lockdown. Here showing us the path how to face the life in a difficult situation by keeping a positive attitude. Madam also teaches us new types of pranayam daily. Daily, it is also helpful to us. We are getting so much of knowledge from these sessions. Thank you, sir and madam. Thank you for giving me this opportunity to share my Very nice. Thank you, sir. Very good words you spoke. Really, Yeah. Your granny also along with you. Mummy also along with you. It's 4 members together, 3 members together. Now I would like to request Ashfaq sir. Sir, आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है. You please, sir. Thank you very much for giving me the opportunity. Yeah, sir. Welcome. I'd like to say one couplet in Urdu. Yeah. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. Wow. तो ये जो ये हमारी तो तमन्ना है कि हमारी जिंदगी जो है वो शम्मा की जैसी हो जाए. जी. Whenever I attending the session of Dr. Rajkumar,
I feel his life is already that light, which is enlightening others. And in this, I have, tried to put in a capsule that, he is already a light who's giving light to others. और एक शम्मा जब दूसरी शम्मा को लाइट देती है, उसकी खुद की लाइट में कभी कोई कमी नहीं आती. The method which suppose Dr. Rajkumar has taken, that alphabets A to Z, whatever we interact, whatever we communicate to each other, it is through these alphabets. And from these alphabets, to remove the positiveness, it is something I feel as a God-given gift, and by which we are all getting benefited. And as you know, I just saw a young boy also coming there. He's saying, "I'm waiting for 4 o'clock." Yes, I'm nearing 50. Even I'm waiting for 4 o'clock. So it has, it is, this light is something which has, transcended from childhood to suppose middle ages to suppose people who are nearing their retirement like me. So we thank Dr. Rajkumar Kohli that in this present situation of this world, where there is very, very, very darkness everywhere, there is depression everywhere. So in that situation, to show light itself is by the grace of God. He is actually the जो उर्दू की कपड़े का जो दूसरा हिस्सा मैंने बताया कि शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ये हम जो है वो तमन्ना अपने लिए कर सकते हैं. But I am sure that Dr. Rajkumar has already reached to that stage. And though my interaction with Dr. Rajkumar has only been through these webinars, never got the opportunity to meet him, but will definitely look forward to meet him sometimes after lockdown when the opportunity gives itself. Yes, welcome. Welcome, sir. Thank you. Thanks a lot, sir, for your fantastic words. It's just like a blessing for all of us. The way you presented yourself, it was your inner beauty and inner heart. Yeah. So thanks a lot. Now we'll move ahead. हम सभी जो हमने इस वेबिनार में हमारी जो भाषा है, हमने खास हिंदी को चुना इसलिए था कि सभी लोग इसको समझ पाए. भाषा वही होती है जो प्रेम से बोली जाए. मुझे उर्दू भी बहुत, मैंने सर को मैं बताना चाहूँगा कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैंने उर्दू पढ़ी भी और मैं उर्दू को जानता भी था. अभी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, जैसे मैं बॉम्बे में आया तब से थोड़ी मेरी उर्दू में मराठी मिक्स हो गई. तो उर्दू में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उर्दू ज़बान ऐसी है कि बहुत मिठास है. भाषा कोई भी हो और बहुत मीठे प्यारे लोग हैं, तो मैं सभी का तहे दिल स्वागत करता हूँ. और आज हम बड़े अच्छे पड़ाव पर हैं. जैसे जैसे दिन नज़दीक, गांव नज़दीक आता है तो गांव के लाइट नज़र आते तो बहुत तेज़ कदम अपने आप हो जाते, कहीं थके हुए क्यों ना हो. लेकिन हम तो बिल्कुल थके नहीं है, ना आप थके हैं और मैं तो बिल्कुल नहीं थका हूँ. मुझे तो लगता है कि मुझे और एक चैलेंज मिल गया 44 वर्ड का, 46 वर्ड का. तो मुझे लगा कि और कुछ और नया ना आ जाए. तो एक नई एनर्जी मिल रही है, नए दौर मुझे भी सीखने को मिल रहा है. जब मैंने आज सुबह देखा कि मैं एक बार देख तो लूँ क्या हुआ, जब मैंने YouTube पे जाने की कोशिश किया और मैंने मुझे सोचा कि चलो एक बार देख तो लूँ कि YouTube पे सब अवेलेबल है क्या. और जब मैंने खोला तो मुझे लगा कि अरे मुझे तो सुनना चाहिए एक बार, मैंने क्या कहा था. तो क्या होता है कि कई बातें ऐसी है ना कि जो वी आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर द सुप्रीम सोल. ये चीज़ें कोई हमसे नहीं होती है. और जो कहे कि मैं कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी, बहुत बड़ा अभिशाप हो जाएगा कि मैं कर रहा हूँ. ये मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. मुझसे कोई करवा रहा है और मैं एक निमित्त हूँ, आपके जैसे ही हूँ. लेकिन ये बात उतनी सही है कि हर चीज़ के लिए कुछ परिश्रम करने होते हैं. कल तक 21 वर्ड देखे हमने, आज 22 वर्ड देखेंगे. और आज आपने बहुत सुंदर सुंदर शब्द मेरे सामने रखे. वैरायटी, बाद में वैल्यू ऑफ लाइफ, वैक्सीन भी है जो अभी तक आई नहीं. आ जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा. कब पता चले, आ जाए तो सारा कोरोना भाग जाएगा. बहुत ज़रूरी वैक्सीन की. वैल्यू ऑफ लाइफ है, और भी विश्वास है, विद्या है, वायरस है, वेंस है. तो वायरस को अभी भी याद कर रहे हो? हाँ, चलो. तो बहुत वैलर है, वैल्यूज है.
बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपने मुझे दिए, और इसी शब्दों को मैं हर रोज आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ, ये बात नहीं है। मैं हर रोज एक सीखने की भावना से यहाँ आता हूँ, सिखाने की भावना से बिल्कुल नहीं आता हूँ। जिस दिन सिखाने की भावना से आऊँगा शायद तो बात बन नहीं पाएगी, वो बात आपके दिल तक नहीं पहुँचेंगी, वो बात मस्तिष्क तक ही रहेगी। तो जब दिल में दिल तभी मिलता है कि जब वो भावना जुड़ जाती है, तभी हम सभी शिक्षक पेशा में सभी जानते हैं कि कभी कभी लेक्चर हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं और बच्चे भी बहुत दाद देते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। तो सबको पता है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, जब भी आप पीरियड लेते हो तो जब दिल से बात निकलती है, दिल तक पहुंच जाती है, तो एक दूसरे का अच्छा आदान प्रदान होता है, और वह कई दिनों तक, कई सालों तक, पूरी जिंदगी भर वो चीज़ हमारी एक एसेट बन जाती है। ऐसे ही हम सबके पास स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे, शिकागो, सबको पता है 1892 में, और उनका भाषण तो जग जाहिर है। तब किसी बच्चे ने उनको कहा कि आप जो ड्रेस पहनते हो जेंटलमैन नहीं लगते हो, आप जो ड्रेस पहनते हो ना तो जेंटलमैन नहीं लगते हो, इधर से खुला है उधर से खुला है। और आपको पता है स्वामी विवेकानंद ड्रेस कैसा था। तो बड़े नम्र शब्दों में उन्होंने कहा कि आपके यहाँ टेलर जेंटलमैन बनाते हैं और हमारे यहाँ कैरेक्टर जेंटलमैन बनाता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपके यहाँ जो है ना टेलर जेंटलमैन बनाता है, हमारे यहाँ कैरेक्टर जेंटलमैन बनाता है। वो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। तो ये बहुत बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े विचार होते हैं, उनकी एक धारणा होती है, उनका एक जीवन होता है, और कई जीवन तक, कई सालों तक हमारे ऊपर वो छाप छोड़ती है। तभी तो आज 1890 की बात, 92 की बात, आज हम 2021 में 20 में जा रहे हैं, तो नेचुरल है इतने सालों के बाद भी जब हम उनको याद कर रहे हैं। तो ताकत विचारों में रखो, आवाज में नहीं। कहा जाता ना कि ताकत जो है विचारों में रखो, आवाज में नहीं। फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। बहुत जरूरी है। आवाज हम बहुत बढ़ाते हैं हर जगह, लेकिन फसल हमेशा बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। आप सबको पता है कि ये जो हमारी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी आपको मिला है, और एक शर्त है कि ये गाड़ी दोबारा नहीं मिलेगी। आपको चूज करना है कि गाड़ी आपको कैसी होगी। फिर आपके पास कि गाड़ी जब दोबारा मिलना नहीं है, तो आप अपने ढंग से गाड़ी का कलर चूज करोगे, अपने ढंग से वहां पे एक्सेसरीज लगाओगे, क्योंकि शर्त है कि दोबारा गाड़ी नहीं मिलेगी। जब ये रास्ते पे चलने वाली गाड़ी के ऊपर ऐसी शर्त आ जाती है कि आप जो मर्जी चाहो कर लो, दोबारा नहीं मिलेगी, तो ये जो गाड़ी है इसके लिए भी बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये भी दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि एक बार अगर रिपेयर के लिए चली जाए तो क्या होगा, उसको डायरेक्ट मेंटेनेंस के लिए ऊपर ही भेजनी पड़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है, ऊपर ही मेंटेनेंस के लिए भेज दो, फिर वापस तो आने की कोई चांसेस नहीं है। तो जो मिली है उसको संभाल के रखना है। तो आज हम चाहते हैं, जो शब्द मैं आपको दे रहा हूँ वह विजुलाइज। अपने आप को विजुलाइज करो। हर व्यक्ति का एक विजन होता है, हर संस्था का विजन होता है, हर कंपनी का एक विजन होता है, और जिसके पास जितना बड़ा विजन होता है उतनी वो कंपनी बड़ी होती है, उतनी वो संस्था बड़ी होती है, उतना वो व्यक्ति बड़ा होता है। विजन रिविजन के सिवा नहीं होता है। विजन और इमेजिनेशन में बहुत थोड़ा सा अंतर है। इमेजिनेशन का मतलब ही वही होता है कि आने वाला आप इमेजिन करो कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। विजन हमारे कुछ पास्ट बातों पर भी आधार होता है, कि हमने जो भी कुछ किया है उसका आधार बन जाता है। हम सभी के जीवन में पास्ट मतलब जो भूतकाल करते हैं, भूतों के समान नाच रहे हैं। ये राजा महाराजा के बेटे तो है नहीं कि चलो भाई बहुत बड़ी लेगेसी है और वो लेके आए हैं। हम तो गली कुचे में से आए हुए मैक्सिमम लोग हैं, तो नेचुरल है। अनुभव तो हमारे बड़े बड़े खूंखार अनुभव है, और ऐसे ऐसे अनुभव है कि सुनाने लग जाए तो रात भी काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे ऐसे हमारे अनुभव है, लेकिन वो हमारा बहुत बड़ा पिटाराम समझते हैं, वो हमारा खजाना समझते हैं, और उसी में उसी के मौज में रहते हैं। कभी कभी उसमें खुशी कम और दुख ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऐसे ऐसे अनुभव है हमारे पास, ऐसे ऐसे दर्द भरी जिंदगी हमने जी है कि कभी भी किसी ने अगर याद दिला दी तो आंखों में आंसू आ जाते, आंखों में आंसू आ जाते। तो फिर फ्यूचर के सोचने वाली बात ही नहीं बनती है। फ्यूचर तभी बन पाता है कि जब वर्तमान अच्छा हो, जिसका पास्ट भी उसके साथ हो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और विजुअलाइजेशन की बात आती है फ्यूचर की,
विजुअलाइजेशन की बात आती, फ्यूचर, फ्यूचर तो है ही पक्का, हर व्यक्ति का जब वर्तमान है तो भविष्य भी है। आज हर व्यक्ति, हर संसार में जो भी प्राणी है, पशु है, भले वो आज जी रहा है, खुल के जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसको कल की चिंता जरूर होती है। तभी वह पशु भी है, कल के लिए कुछ ना कुछ बचत करके छुपा के रख लेता है कि कल नहीं मिला तो ये मुझे काम आ जाएगा। लेकिन हमारा जिंदगी भी पशु के समान नहीं, हमारी जिंदगी कोई प्राणियों के समान नहीं है। हम तो मनुष्य प्राणी है, लेकिन हमारे विचारों से हमारी जिंदगी बनती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजें सोचे कि जो हमारे जीवन के साथ संबंध हो। मुझे बात याद आ रही है जिम कॉलिंस, जो आज दुनिया में सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु है। जिम कॉलिंस, कभी आप गूगल कर लेना, जिसका 1 घंटे का हिसाब अगर किसको बताना हो, किसको समझाना हो, कोई लेक्चर देना हो, तो वह कम से कम $60,000 से $1,00,000 तक चार्ज करते हैं। सोचो आप। और वो बातें वही बताते हैं जो आज हम 26-22 दिन से कर रहे हैं। क्योंकि उनके सामने कौन होते हैं? उनके सामने होते हैं वो लोग जिनका टर्नओवर 1,000 कोटी का है, 5,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, 1,000 करोड़ का है, 10 लाख करोड़ का है। उनके सामने कोई छोटे मोटे लोग तो होते नहीं, उनके सामने तो सारे विजनरी लोग होते हैं। और वह तो बातें क्या करते हैं वहां पर? बातें वही करते हैं ABCD वाली बातें, वही होती है ABCD वाली। वो भी एक विजन की बात बताते हैं कि हमारा विजन कितना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो लोग आज ही करते, आज ही खाते और आज ही का सोचते हैं, उसको जिंदगी नहीं कहा जाता है। बस आज ही कमाया, आज ही खा लिया और कुछ भी नहीं बचा। कहते ना कि ये तो जिंदगी कैसी है, पशु मात्र जीवन है। जीवन तो होता है कि जो आगे तक चले। जीवन वो होता है कि जो एक फ्यूचर दिखाई दे। संस्था में अगर फ्यूचर दिखाई दे तो एम्प्लॉयज को भी लगता है कि हम इस संस्था में बने रहे। कंपनी का भी फ्यूचर दिखाई दे तो कंपनी सारी एम्प्लॉयज को लगता है कि इस कंपनी में फ्यूचर है, जरूर मैं बहुत बड़ा बनूंगा। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति अपना फ्यूचर चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि खाली वर्तमान में जीना चाहता है? बिल्कुल कोई नहीं है, कोई नहीं होगा कि जो वर्तमान में जीना चाहता है। लेकिन इतना भी पक्का है कि वर्तमान में अगर अच्छा जियोगे तो फ्यूचर आपका 100% पक्का अच्छा है। तो क्यों ना हम उस फ्यूचर जो हम रोड मैप बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, कभी उसके बारे में सोचा है कि हमने क्या करना चाहिए? एक खाली हमें अगर 4 महीना के बाद, 1 साल के बाद अगर हम कहीं टूर पे जाना हो, 4 दिन का टूर होता है, बड़े मुश्किल से 8 दिन का टूर होता है, उसके लिए प्लानिंग हमारा 4 महीने पहले से होता है। टिकट बुक करने से लेकर तो होटल बुकिंग से हर चीज का प्लानिंग होता है। सोचो आप, 4 दिन की, 8 दिन की यात्रा है, प्लानिंग महीनों से चलता है। और ये इतनी बड़ी जिंदगी की यात्रा है, क्या हम उसके लिए 90 मिनट भी दे सकते? सोचो, क्या इतनी बड़ी जिंदगी की बड़ी इतनी लंबी यात्रा है, इतना तो कितना अच्छा प्लानिंग होना चाहिए, कितना अच्छा प्लानिंग इसका होना चाहिए, वो आज तक हमने कभी सोचा नहीं। और हमें फिर कोई भी फेलियर आ जाता है तो हम हार जाते हैं। तो हमें इस बात को थोड़ा सोचना है, उसको विजुलाइज करना है। तो विजुलाइज कैसे करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है, कोई चीज व्यर्थ नहीं है। कोई भी चीज आपको वेस्ट, जिसको आप वेस्ट बोलते हैं, वो भी बेस्ट बन सकता है और हो रहा है। जिसको हम समझते थे कि कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसा कुछ कर लेता है कि आप दांतों तले अपनी उंगलियां दबा के बैठ जाते हैं। कोई भरोसा नहीं किसका, कौन कब छा जाए, किसका क्या अंदर विजन है। कोई अंदर ही अंदर गुप्त प्रैक्टिस करता है और जब मैच में आता है तब एक 100 लगा के आगे निकल जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं, अंपायर ने भी नहीं सोचा, ना वह कोच ने सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसे बहुत लोगों के उदाहरण है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, हुसैन बोल्ट, जिसने 2008, 2012 और 2016 लगातार ओलंपिक में चैंपियन बना रहा, वो भी गोल्ड मेडल से कम नहीं। 100 मीटर में भी था, 200 में भी था, 400 मीटर में भी था।
मैंने अंदाजा लगाया कि ये आदमी पूरे गोल्ड मेडल में कितना भागा, 5 मिनट। गिनती करो आप, उसके रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड उसी के नाम है। 9 सेकंड में उसका 100 मीटर का रिकॉर्ड है, 17-18 सेकंड में 200 का है, 35-36 सेकंड में उसका, सेकंड की बात करो, मिनट में तो है नहीं, सारे रिकॉर्ड उसके सेकंड में ही है। तो बड़े मुश्किल से पूरे जीवन में वह 5 मिनट भागा, समझे ना। और आज उसके पास इतना पैसा है, शायद एक कंट्री का पूरा जीडीपी हो सकता है, समझे ना, एक कंट्री का पूरा जीडीपी हो सकता है। पूरी जिंदगी में 5 मिनट भागा। हम सबको वही दिख रहा है कि वो 5 मिनट भागा, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है। मेहनत 15 से 20 साल की लगातार भागने की है, तब जाके वो 5 मिनट उसके गोल्डन अक्षरों में लिखे गए। तो वही चीजें होती है। हमारे पीछे बहुत बड़ी लेगासी है। हमने कई बार कहा कि हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, वहां से आए हुए संस्कार, वहां से बहुत सारी बातें हमने ली है, और वहां अभी हम यहाँ तक पहुंचे। अभी आगे का रास्ता तो हमें तय करना है। आपका अनुभव, आपको जहां तक लाना था आपको वहां छोड़ दिया, समझे ना। हम सब का अनुभव जितना था, जहां तक पहुंचाना था वहां तक आके खड़े हो गए। अभी इसके आगे की जर्नी है, वह है विजुअलाइजेशन से, वो जर्नी होगी विजन से। इसके आगे अनुभव काम नहीं आएगा, हमेशा ध्यान में रखना। कल भी हमने वही बात की थी, थोड़ा अलग रूप में की थी, आज मैं थोड़ी अलग रूप में बात कर रहा हूँ। इसके आगे अनुभव काम नहीं आएगा, इसके आगे आएगा काम क्या, कि मैं इस चीज को कितने बड़े रूप में देख रहा हूँ और किस स्वरूप में देखना चाहता हूँ, कि मैं अपने आप को किस स्वरूप में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, या जहां भी जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, उस संस्था को मैं आने वाले 10 साल में, 15 साल में, मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मैं आने वाले 10 साल में, 15 साल में मेरी फैमिली कहाँ होगी, इसको कहते विजन। फैमिली कहाँ होगी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अमेरिका लेके जाओ, वहां ज्यादा करोड़ है, समझे ना। फैमिली कहाँ होने का मतलब है, जिस परिस्थिति में अभी आप हो, हर किसी के ड्रीम्स है, वो सपने पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कैसे किए जाए इसका कभी गणित किसने समझाया नहीं। सभी कहते सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो, लेकिन ये नहीं बताया कि सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, सपनों पे कैसा काम होता है। सपने वो है कि जो पूरे होते हैं, अदरवाइज वो सपने हमें हमेशा डराते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब खुले आंखों से हम सपने देखते हैं तो उसकी पूरी होने की उम्मीद बन जाती है, और बंद आंखों से देखते हैं तो उसकी उम्मीद कम हो जाती है। तो बहुत जरूरी है हम इन लोगों से जब देखते हैं, सुनते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित लगता है कि ये जो लोग हैं जो एक विजन लेके आए, जो एक विजुअलाइज अपने जीवन को किया, तो क्या हम नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता। हर किसी के पास भगवान ने, कुदरत ने, वह यूनिवर्सल पावर ने हर किसी के पास वो पावर दे दिया है। उस दिन में हमने कहा था कि हम इतने अमीर नहीं कि पास्ट खरीद सकते हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं कि वर्तमान में नहीं जी सकते। बिल्कुल 100% हम बहुत अमीर हैं। आज के डेट में जितनी अमीरी हमारे पास है, उतनी अमीरी किसी के पास भी नहीं हो सकती, हम सभी। तो अभी ये देखना है कि इस अमीरी को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जो सेशन है, मैं 15 मिनट तक हम आपको उस यात्रा पे ले जाएंगे, सचमुच उस सपने को साकार हो जाए, और उसकी आप रोज प्रैक्टिस करोगे। कुछ बात करके मैं उसी को, क्योंकि आज मैंने सोचा कि खुले आंखों से सपने दिखा दूं, लेकिन उसको विजुलाइज करने के लिए आंखें बंद करने की बहुत जरूरत है। खुले आंखों से सपने तो देख लो, लेकिन उसको विजुलाइज करने के लिए आंखें बंद होना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि हम किसको चैलेंज नहीं कर सकते, ना कंपैरिजन कर सकते, क्योंकि यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड। कल भी बात वही की थी, आज भी मैं वही बता रहा हूँ कि हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। एक किसान ने सोचा कि मैं भगवान को चैलेंज करूं, तो ये क्या भगवान है जिसको हम भगवान बहुत बड़े मानते हैं, जब देखो तब आंधी लेके आता है, तब देखो तब तूफान लेके आता है, तब देखो बगैर मौसम की बारिश करता है, जो चाहे जब चाहे तब हो जाता है। ये कैसी कुदरत है, ये कैसा करिश्मा है।
आखिर वो भगवान से बहुत नाराज होता है, भगवान से कहता है कि भाई ये कौन सा तेरा कुदरत का नियम है। तो भगवान ने कहा कि आखिर तू क्या चाहता है? बोले एक दिन के लिए सत्ता मेरे पास तो देके रख, देख मैं कैसे करता हूँ। भगवान ने कहा अच्छी बात है, ये लो भाई सत्ता संभालो। मैं भी चाहता था कि मेरा शिष्य बड़ा हो जाए, उन गुरु ने चाहता कि अपना शिष्य बड़ा हो जाए, तो भगवान को भी लगा कि चल ये सत्ता तुझे देता हूँ संभालने के लिए। तो फिर ये तो महाराज बड़े ऊर्जा थे, चलो जब मौसम बारिश चाहिए तभी बारिश दी, जब धूप चाहिए तब धूप दी, पूरा साल बड़ा अच्छा गुजरा, सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। लेकिन जब फसल काटने का मौका आया तब फसल में एक भी दाना नहीं था। फसल में, गेहूं की फसल में जो भी फसलें आई थी उसमें एक भी दाना नहीं था। सारी फसलें हरी भरी थी, बहुत ऊंची ऊंची थी, बहुत हरियाली, जगह देखो उधर हरियाली हरियाली नजर आ रही थी, लेकिन उसमें ना दाना था ना खाने के लिए कुछ था, सब हरियाली हरियाली थी। तब आखिर उसको भगवान के पास जाना पड़ा, पूछना पड़ा कि भाई ऐसा कैसे हुआ? तो यही तो राज है, तुझे नहीं पता, ये जो हवाएं चलती है वो तो फसल है, मजबूत होती है। यदि हवाएं नहीं चलेगी तो फसल मजबूत नहीं होगी, और जब तक वो मजबूती उसके जड़ों में नहीं आती है तब तक ऊपर उसके दाने पकते नहीं है। बहुत जरूरी है जड़ों में मजबूती होना। और तुझे क्या लगा कि बस हवाएं भी नहीं चले, बारिश भी ज्यादा ना हो, ज्यादा कभी धूप भी ना हो, सारी चीजें मेरे मन के मुताबिक हो, तेरे मन के मुताबिक अभी सब कुछ हो गया, अब मुझे बता अब क्या करेगा? आखिर वह नतमस्तक हो गया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी व्यवस्था है कि उस व्यवस्था के सामने हमें नतमस्तक होना ही पड़ता है, वहां कोई भी गुरूर काम नहीं आता। लेकिन हर एक का एक स्वाभिमान है, हर एक को ऊंचा उठने का हर एक को अधिकार है, हर एक को असीम, कोई लिमिटेशन नहीं। यदि लिमिटेशन होती तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को बहुत ऊंचाई पे जाते हुए नहीं देखा होता। अभी धीरू भाई अंबानी जी भी एक क्या थे, कहाँ थे? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, 150 रुपया उनका तनख्वाह था। सोचो आप, तो वही व्यक्ति आज कितनी बड़ी लेगेसी देके गया तो सबको पता है। विराट कोहली जो आज वर्तमान के कैप्टन है, सभी को पता है कि एक दिन ऐसी नौबत आ गई, रणजी की मैच है और लास्ट डे है, और उसी दिन उनके पिता की मौत हो जाती है। सोचो जिसके पिता की मौत हुई हो, वो रणजी की मैच खेले कि अभी पिता की अंतिम क्रिया करे। लेकिन उनके कोच ने उनको कहा कि देख बेटा, अब तेरे पास ये अच्छा एक मौका है, जो होना था घर में हो गया, पिता को तो वापस नहीं ला सकता लेकिन तू पिता को खुश कर सकता है। कैसे खुश किया जा सकता है? तू एक बार ये मैच तो खेल ले, तू मैच तो खेल ले, अंतिम क्रिया तो कल 5 बजे होने वाली है, मैच 5 बजे तक खत्म हो जाएगी, तब तक करने वाले कर लेंगे, पूरी व्यवस्था कर लेंगे। अब तो तू रोने के सिवा कुछ कर नहीं सकता, तो क्यों नहीं अभी बहती गंगा में हाथ धो ले। और उनका कोच भी उस समय सिडनी में था, इंडिया में भी नहीं था, और मैच इंडिया में चल रही थी। ये हकीकत की घटना है जो वहाँ आपको बता रहा हूँ। और बाद में पता चला कि उस बंदे ने 90 रन बनाए, वो मैच भी जीता और 5 बजे जाके अपने पिता की अंतिम क्रिया की। तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, सबके कैप्टन। तो सोचो क्या होता है, जो भी दुर्घटना आती है ना, हमको अच्छा बनाने के लिए आती है। जो भी हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल होता है, उस समय अगर वो निर्णय नहीं लेता और सोचता कि मुझे मेरी पिता की अंतिम क्रिया आज जरूरी है, मैं ये मैच नहीं खेल सकता, तो शायद हो सकता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से विराट कोहली को टेस्ट में या वनडे में चांस मिला था, और वो एक कगार थी, वो एक लाइन थी कि वहां से वो आदमी ऊपर उठ गया। तो हर समय प्रकृति को, हर समय हमारे जो पूर्व कर्म है हमारी परीक्षा लेती है, और वही उसी के साथ विजुअलाइजेशन जुड़ा हुआ है। तो चलो हम सभी थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। मैं जो भी कह रहा हूं वो सारी बातों को आप रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं, और देखना आप कि 10-15 मिनट का सेशन है, इसी के साथ साथ मेडिटेशन भी हो जाएगा। थोड़ा अच्छे होके बैठे, स्वस्थ होके बैठे,
आंखें थोड़ी बंद करें, कोमलता से बंद करें, बहुत सहजता से अपनी आंखें बंद रखें। और जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे द्वारा जो भी कुछ हो रहा है, आप उसको अनुभव करें। आप उसको अनुभव करें। एक गहरी सांस ले, गहरी सांस ले और सांस छोड़े। एक वेलनेस की फीलिंग आने दे, वेलनेस, हैप्पीनेस की फीलिंग आने दे। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। सारा तनाव, पेन बाहर जा रहा है, जो भी पेन है अंदर, जो तनाव है बाहर जा रहा है। अब एकदम स्वस्थ हो गए। कुछ देर तक सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, उसको देखिए। आप सांस अंदर ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उस सांसों को आप देख रहे हो। धीरे धीरे आप अपने भूतकाल में जाओ। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो जिसकी जितनी उम्र है उसके हिसाब से आप पीछे जाओ और उसमें देखो कि आपने ऐसी बहुत सारी बातें हो गई जो अभी भी डिस्टर्ब कर रही है। अभी भी वर्तमान मेरा खराब करने की कोशिश कर रही है। सारी बातें को, सारी परिस्थितियों को, तो कितनी भी मोटी बड़ी इमेज है, कितना भी बड़ा गुनाह हुआ हो, कोई भूल हुई हो, जो भी कुछ हुआ है, सारी बातों को क्या करो, मिनिमाइज करो। बहुत एकदम फुल स्टॉप, बिंदु रूप में लेके आओ। बड़ा इवेंट है, छोटा हो गया, स्मॉल स्मॉल एकदम पार्टिकल हो गया, अदृश्य हो गया। जो भी पास्ट की बात है सारी अदृश्य हो गई। अच्छी चीजें मैं साथ में लेके आ रहा हूँ और मेरा पूरा पास्ट क्लीन हो गया। जो भी मेरा पास्ट है वो पूरा क्लीन हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। अब मैं वर्तमान में हूँ और मैं भविष्य को विजुलाइज कर रहा हूँ। मैं एक रनवे देख रहा हूँ, एक हाईवे देख रहा हूँ, उसमें एक रेनबो देख रहा हूँ। बहुत सुंदर अलग अलग कलर का रेनबो है। मेरा जीवन बहुत सुंदरता से भरा पड़ा हुआ है। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। मेरा वेट, मेरा वजन, शुगर लेवल, बीपी, मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य मिल गया। अच्छा शरीर मिला है मुझे, रोग रहित शरीर मिला है मुझे। शरीर के दुख थे, जो भी शरीर के पेन थे, वो सारे खत्म हो गए। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ और मुझे एक सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही आनंददायक, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ मेरा चेहरा। अनुभव करो कि मेरा चेहरा बहुत चमकता है। हंस रहे हो आप, आपके चेहरे पे मुस्कान है, अपने आप को मुस्कान आ रही है। एक नई एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि रनवे पे प्लेन भाग रहे हैं ना, वैसे आपकी जिंदगी भाग रही है। आप लोगों से मिल रहे हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं। अभी आपको किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, आप बहुत खुश हो, आप सभी से बहुत खुश हो। पति हो, पत्नी हो, बेटे हैं, बेटी है, भाई है, बहन है, दोस्त है, जो भी परिवार है। आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो, वहां भी आप बहुत खुश हो। सबको आप विजुलाइज कर रहे हो, सबको देख रहे हो कि बहुत
दूसरे के जीवन में खुशी आ गई, सब लोग खुश है, बहुत खुश है। अभी आप और आगे जा रहे हो, आपका घर कितना नंदनवन जैसा आपका घर बन गया, आपके घर में सारी खुशी आ गई है। आपने अपने घर का कलर, मन पसंद कलर अपने घर में लगा, आपका मन पसंद कलर है, आपके मन पसंद सारे फर्नीचर से आपके घर में रखे गए, आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम, आपकी हर चीज आपकी मन पसंद की, आपका जीवन। और वहां आप बहुत प्यार से बैठी हो, अपने परिवार से खुशी खुशी में बात कर रहे हो, खुश होकर बात कर रहे हो, और आप आगे बढ़ रहे हो। आप एक मन पसंद बहुत अच्छे गाड़ी में सफर कर रहे हो, बहुत अच्छी गाड़ी है, सफर कर रहे हो आप, वहां भी अपने मन पसंद का गाना सुन रहे हो, घर में भी मन पसंद फैमिली है, यहाँ भी गाना आप मन पसंद का सुन रहे हो, हर चीज आपके मन की पसंद की है। आप बहुत जीवन खूबसूरती से जी रहे हो, अंदर से खुशियां भर के आप अपना जीवन जी रहे हो, और आप जीवन जी के बहुत खुश हो। आप अपने बैंक के अकाउंट को देख रहे हैं, अकाउंट में भी आप देख रहे हैं कि आपको जितना जो चाहिए उससे ज्यादा बैंक अकाउंट में तो बैंक का बैलेंस भी बहुत अच्छा है, आपका जीवन का बैलेंस भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, आपका परिवार, आपका जीवन बहुत प्यार से, बहुत आनंद से जा रहा है। आप जिन जिन लोगों से मिलना चाहते हो, आप मन पसंद के लोग, बड़े बड़े वीआईपी के साथ आपके उठना बैठना होता है। कोई राजनीतिक लोग हैं, कोई स्पिरिचुअल लोग हैं, कोई शिक्षक है, कोई गुरु है, कोई महागुरु है, बड़े बड़े लोगों से आपसे उठना है, उनके संगत में बड़े बड़े अमीर लोगों से आपसे बातें हो रही है, आपके साथ आपके जो भी है, आपका जो दायरा है बहुत बड़ा हो गया। क्या भगवान ने सुंदर जीवन आपको दिया, आप इस सबको विजुलाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि आपका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा है, आपकी हेल्थ भी बहुत सुंदर है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इतना सुंदर है कि आप खुद होके कह रहे हो कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे लिए इतना अच्छा सुंदर फ्यूचर बना के रखा, तूने वर्तमान भी मुझे बहुत बना के दिया। अनुभव करो कि जैसे कि पुष्पों की वर्षा आपके ऊपर हो रही है। कुदरत सुप्रीम पावर, वह पावरफुल सोल आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है। आप वृद्धाश्रम, आपका धीरे धीरे आपकी उम्र 100 साल तक हो गई, हर साल का बर्थडे मनाते मनाते आप 100 साल तक पहुंच गए, और आपने धूमधाम से अपने 100 साल मनाए। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका परिवार अच्छा है, ना आपके हाथों में काटी है, ना आपके चेहरे में कोई सिकन है, ना कोई तकलीफ है, ऐसा आपका शरीर रोग रहित 100 साल तक। वाह, जीवन आपको ऐसा हो। और उसके लिए कई लोगों को आपने इनवाइट किया, कई लोगों को इनवाइट किया, सभी आपको बड़े प्यार भरे भरे तोहफे दे रहे हैं, और वो सारे तोहफे आप उनको रिटर्न कर रहे हो, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हो, सारे तोहफे आप रिटर्न में दे रहे हो, क्योंकि आपका जीवन भरपूर हो गया। आपका भगवान का आप लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहे हो। उस यूनिवर्सल पावर है, उसकी ताकत अभी आपने आजमा ली है। आपका जीवन एक बहुत बड़े विजन के रूप में जिया है। सारे गिफ्ट का वर्षाव जो आपके ऊपर हुआ है, वो सारे गिफ्ट आप रिटर्न गिफ्ट करके सबको दे रहे हैं। और ये जो फ्यूचर की रनवे की गाड़ी है, धीरे धीरे वर्तमान में आ रही है, धीरे धीरे वर्तमान में आ रही है, और वर्तमान में आकर खुशी खुशी में अपने इतने अच्छे सुंदर फ्यूचर को देख के
वर्तमान में प्रतिज्ञा कर रही है कि भगवान तूने मेरा इतना अच्छा फ्यूचर बना के रखा है, तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, तूने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन आज तक मैं देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। आज मुझे पता चला कि तूने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी एक्सटेंडेड फैमिली दी, जहाँ मैं वर्क करता हूँ वहां भी अच्छे लोग हैं, जहाँ परिवार में भी अच्छे लोग हैं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ वह छत्र छाया के रूप में मेरे साथ रहता है। मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण करें, अपने आंखों पे लगाए और वर्तमान में आए। ये है हमारी विजन। इस विजन के साथ अगर हम जीते हैं वर्तमान में, तो भविष्य में या भविष्य की चिंता करने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। जितना विजन बड़ा उतना भविष्य बड़ा, हमेशा ध्यान में रखिए। इसलिए कोई भी संस्था का लोन देने वाले भी विजन देखते हैं कि संस्था का विजन क्या है, वहां पे लोग जाने वाले भी विजन देखते हैं कि संस्था का विजन क्या है। इसका विजन ही नहीं है तो वहां पे जाने में कोई फायदा नहीं। और विजन बनता है अच्छे हैबिट से, जो प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है, कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल रहना। बिगिन विथ एंडिंग माइंड, क्या हो सकता है, एट द एंड क्या हो सकता है। इसके लिए हम प्रयास ना करें ऐसा नहीं हो सकता। हम प्रयास जरूर करेंगे, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो चीज पहले करना है, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। करना है मतलब करना है, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक काम एक पहली बार करें, बाद में दूसरे काम को हाथ में ले, बाद में विन विन। हर किसी को हम जिताना चाहते हैं, कभी किसी को हरा हुआ महसूस ना, किसी को हराने के लिए जीवन जिए। हर किसी के लिए, तेरी भी जीत मेरी भी जीत, कस्टमर भी जीते और मालिक भी जीते, तब जाके वह रिलेशन बनता है। एम्प्लॉय भी जीते और एम्प्लॉय भी जीते, तब जाके वो रिलेशन बनता है। दोनों की जीत हो, किसी की भी हार ना हो, उसके लिए शुभकामनाएं। इसको भी सुनने के लिए सुनते समय पूरा सुने, सुनते समय पूरा सुने, उत्तर देने की कोशिश ना करें। उत्तर देने के लिए बिल्कुल ना सुने, समझने के लिए सुने। ये बहुत बड़ी खूबी है, समझने के लिए सुने, ना कि उत्तर देने के लिए सुने। हम 90% सुनते इसलिए हैं कि हमको उनको उत्तर देना है। जिस दिन हम समझने के लिए सुनेंगे, उस दिन वो चीज हार्ट तक जाएगी, अदरवाइज माइंड तक ही रहेगी। बहुत जरूरी है, कोई सुनाता है हमको तो हम उत्तर देने के लिए बिल्कुल ना सुने, समझने के लिए सुने। और उसके बाद है सिनर्जी। आज तक हमने एनर्जी को देखा था, हम सिनर्जी को भी देखें, क्योंकि 10 लोगों के दिमाग है। ठीक है, हर एक का दिमाग अपना अपना है। अभी 10 को एक साथ लाना है। और हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा प्रेजेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। एनर्जी के ऊपर नहीं चल रहा है, वो सिनर्जी के ऊपर चल रहा है। मैं आपको सिनर्जी की परिभाषा बता रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी खोपड़ी है, एक के भी विचार दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन राज्य की भलाई के लिए सब एक हो गए। वैसे ही एक की खोपड़ी दूसरे को ना मिले, संस्था की भलाई के लिए सब एक हो जाए, कंपनी की भलाई के लिए सब एक हो जाए, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाए और आगे बढ़े। कंपनी का नुकसान ना हो, क्योंकि वह है तो हम है। संस्था का नुकसान ना हो, संस्था है तो हम है। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाए और चले। वैसे ही परिवार में होता है, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाए और चलाए, तो देखो फिर क्या आनंद आता है। तू भी खुश और मैं भी खुश। और कोई भी काम करते समय शार्पन यूर सो कहा जाता है ना, कि भाई हर चीज के पहले अपने तलवार को तेज लगाओ, धारदार बनाओ। हर चीज करने के पहले धार लगाना बहुत जरूरी है। ये जो 7 बातें हैं, ये मेरी नहीं है, ये सबसे बड़े दुनिया की महान गुरु है, उसका नाम है स्टीफन कॉलिंस। उनका एक बहुत प्रसिद्ध किताब है हैबिट्स ऑफ हाईली
efficient people. 7 habits of highly efficient people. तो ये सुनाने के लिए वो कम से कम $1,00,000 लेते हैं और मैंने कुछ भी चार्ज नहीं किया, इसलिए फ्री में मिले, इसलिए आसानी से मत लेना। इसको जो ध्यान से कोशिश करना कि अपने ब्रॉडर माइंड के साथ विजुलाइज करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और जब हम सारी चीजें करेंगे, मुझे एक छोटा सा अनुभव आ रहा है कि विजुलाइजेशन से कितना बड़ा इफेक्ट होता है। मैं उसका जीता जागता अनुभव हूँ। मेरे पास वैसा है कुछ नहीं, मैं अपना थोड़ा सा 2 मिनट का अनुभव बता दूं। मेरे पास बहुत सारे लोग बैठे, कुमार सर यहाँ बैठे, वो साक्षी है मेरे पूरे जीवन की यात्रा के। अल्पेश बैठा है, दीदी बैठी है, कम थोड़ा सा जानवी तो है ही है, जानवी हाथ खड़ा करेगी। मुझे बात याद आ रही है कि जब भी कोई डोंबिवली में आता था ना, 10 साल पहले, 15 साल पहले, अभी भी लोग आते हैं ना, तो कोई 500,000 करोड़ की बात करते हैं ना, तो मेरे पास आते है ना कुमार सर। तो फिर कोई चीज बेचना हो तो पहले सर को जाके पूछे। तो मेरे जेब में तो 500 रुपया भी नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 500 रुपये भी नहीं होता है, लेकिन पूछने में मुझे आता है कि ये चीज ना सर बहुत अच्छी है, मैं अगर आप लेना चाहे तो मैं पहले आपको देना चाहूंगा, बाद में किसी और को। ऐसी कुछ घटना मेरे साथ हुई, शायद कुमार सर को पता होगा। हम एक होटल में गए थे बर्थडे मनाने, और वहां हम किसको लेके गए थे, याद होगा सबको, जो लोग मेरे साथ उस समय आए थे। तब हमारे साथ कुछ अंध बच्चे थे, अपाहिज बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्योंकि वैसे भी अनाथ बच्चे थे। ऐसे लोगों को हमने 5 स्टार होटल में लेके गए थे अंधेरी में। तो जब हम बैठे, प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम ओके, सब लोग चले गए, हम लोग वहीं पे रुके। वो भी मुझे 10 दिन का वाउचर गिफ्ट मिला था 5 स्टार में रहने का। उसकी बहुत लंबी कहानी वो नहीं बताऊंगी। तो क्या हुआ, दूसरे दिन वहां का जो मैनेजर है, हम ब्रेकफास्ट के टेबल पे बैठे और मेरे पास आए और बोले कि सर मैं एक बात पूछूं आपको। बोला क्यों बात पूरी? बोले सर ये होटल बेचना है। सर बोले होटल बेचना है और आप इसको ले सकते। मैंने देखा 8 दिन से आपसे उतना अमीर कोई देखा ही नहीं मैंने यहाँ पर। मैंने उसको चुप, मेरे साथ जानवी थी, मेरे साथ मैडम थी, हम तीनों चारों टेबल पे बैठे थे। और वो देखो क्षण क्या था, वो लम्हा क्या था, मैं क्या बताऊं आपको, कि कुछ न होते हुए भी उसने मुझे 1000 में, मैंने पूछा उसको मजाक में इसकी कीमत क्या है, तो बोले 1000 करोड़ रुपए है। सर आप तो आसानी से खरीद सकते हो। तो मुझे लगा कि देखो अमीरी किसकी होती है, अमीरी कोई पैसों की नहीं होती, अमीरी होती है दिल की, अमीरी होती है। क्योंकि कल उसने देखा था 1 दिन पहले कि बर्थडे में लोग कौन से आए थे, वो लोग आए थे जिनको कभी 5 स्टार नसीब भी नहीं होता है। तो उसको लगा कि ये व्यक्ति ऐसे लोगों को 5 स्टार में ला सकता है, इसका मतलब ये बहुत अमीर है। तो उसकी जो अमीरी है ना, हमारी सारी मौसियाँ भी थी, कम से कम 50-60 लोग थे। तो मुझे अभी भी वो चीज याद आती है। उसको कम से कम नहीं तो आज 7-8 साल तो हो गए होंगे ना, ज्यादा होंगे, 10 साल के आसपास हुए होंगे। तो देखिए 10-12 साल पुरानी घटना है। तो एक विजुअलाइजेशन हमारा कितना बड़ा काम करता है और लोग कैसे अपने आप पास आते हैं, ये मैं उसके लिए जीवित उदाहरण हूँ और मैं उसी के साथ जीता हूँ। तो मैं आप सभी को चाहूंगा कि अपने विजन बहुत बड़ा रखो, अपने आप को विजुअलाइज रखो, हमेशा जीता जागता रखो, कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करो और कभी भी किसको हराने के लिए नहीं जीतो, बिल्कुल नहीं। खेल खेल के समान खेलो, तो ये जीवन का मजा है। चलो हम सबका शुक्र अदा करते हैं और देखते अभी आज छोटा सा वीडियो भी है और आपके 2 राज्य भी रह गए। एक राज्य है, आज भी से हमें कोई हमारा राज्य नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि केरलियन बहुत हमारे पास है, तो केरला का एक बार सफर करके आ जाए। और बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबको पता होगा, वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री जिसकी पॉपुलेशन है 1000 लोग रहते खाली एक पूरे देश में। उस देश का दौरा करेंगे, ओके, और केरल का दौरा करेंगे और छोटे से क्लिप देखेंगे। चलो भाई सुमेश दिखा दो।
सपनों की दुनिया में सूरज हरा है और फिर येलो। विभोर माँ 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 विभोर माँ 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 माँ। विभोर तूने फिर से कागज हरे पीले करने शुरू कर दिए। और ये क्या है? सूरज हरा होता है? माँ ये मेरे सपनों की दुनिया है। कागज पर दुनिया नहीं बनती, सिर्फ लकीरें बनती है। और तुमसे तो एक सीधी लकीर भी नहीं खींची जाती ना। माँ ये सीधी लकीरें बहुत बोरिंग होती हैं। ये घूमती फिरती गाती नाचती लकीरें अच्छी होती हैं। तुमने अपनी शाम की दवाई ली? माँ दवाई खाना मेरा काम है, लेकिन दवाई खिलाना आपका काम है। चलो दवाई पियो। अच्छा सुन, मैंने गैस पे पानी चढ़ाया है। चाय बनानी सिखाई थी ना मम्मा ने? विभोर सिखाई थी। जाकर बना मेरे लिए। माँ ये मैं ठंडी 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 चाय लाऊंगा। ठंडी चाय ठंडी चाय ठंडी चाय ठंडी चाय ठंडी चाय। मैं क्यों समझ नहीं पाई? उसने कहा था कि तुम्हारी मुसीबत अपने ऊपर ले लूंगा। क्या करूं मैं तेरा? हाँ चाय में कोई नमक डालता है? नमक और चीनी में फर्क नहीं पता तुझे? तू छोटी छोटी बातों के लिए मुझ पे मोहताज है विभोर। पता नहीं अगर तुझ पे कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो कैसे उसका सामना करेगा? माँ जब मुसीबत आएगी तो तब की तब कर लूंगा। लेकिन मेरी माँ पर कोई मुसीबत आएगी उसको पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। डायलॉग बाजी बाद में, पहले इस पेपर पर अपना साइन करके दिखा। विभोर साइन करके दिखा, और जैसे पिछली बार सिखाया था वैसे ही होना चाहिए। वो तो मैं भूल गया। माँ मैं सब कुछ क्यों भूल जाता हूँ? मुझे नहीं पता बच्चा। माँ को कुछ नहीं पता, माँ को कुछ नहीं पता।
दोस्तों आज मैं आपसे दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के बारे में बात करूंगा, जो इटली की कैपिटल सिटी रोम के पास बना हुआ एक छोटा सा देश है। ये देश कुल मिलाकर सिर्फ 440 मीटर में फैला हुआ है। दोस्तों इतना ज़्यादा छोटा देश होने के बावजूद भी ये देश यूएन से मान्यता प्राप्त देश है और इस देश की अपनी करेंसी, अपना डाक विभाग और कई तरह की अपनी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ की आबादी 1000 के आसपास है और यहाँ के किसी भी नागरिक को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। दोस्तों वेटिकन सिटी ईसाई धर्म के प्रमुख सांप्रदायिकों में से एक रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र है, जिसका प्रमुख पोप यहीं पर रहता है। दोस्तों इस छोटे से देश की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च उसके पोप को ईसा मसीह का प्रतिनिधि मानता है, जिसके लिए ये बात जरूरी थी कि वो किसी भी राज्य के अधीन ना हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इटली ने 440 वर्ग किलोमीटर की जमीन दी, जिसको कि पूरी तरह से स्वतंत्र मान लिया गया। और इस तरह से 7 जून 1929 से इस छोटे से देश की शुरुआत हुई। यहाँ की करेंसी भी इटली की तरह यूरो है और यहाँ का 1 यूरो इंडिया के 78 रुपयों के बराबर है। दोस्तों सिंगापुर की तरह ही वेटिकन सिटी भी एक देश, एक सिटी और एक राज्य भी है। काफी ज्यादा पवित्र देश होने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का अश्लील काम करना गैर कानूनी है। और 1985 में अमेरिका के 5 लोग यहाँ पर अश्लील डांस करते हुए अरेस्ट किए गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस देश में जेल नहीं बनी और इस देश में कोई भी जुर्म करने पर जेल में डालने का कोई भी कानून नहीं बना है। वेटिकन सिटी में शादी के बाद डिवोर्स का कोई भी रूल नहीं होता, इसीलिए यहाँ के लोग मैरिज के अलावा डिवोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस छोटे से देश के पास कोई भी मिलिट्री पावर मौजूद नहीं है और ये देश इटली के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहता है। और पूरे देश में सिर्फ एक स्विस गार्ड नाम का गार्ड होता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे छोटे और सबसे रोमांचक देश वेटिकन सिटी के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। चलो बहुत अच्छा। अभी हम आप सबका धन्यवाद करने के लिए, उसके पहले मैं पूछना चाहूँगा कल, या वैशाली मैडम है धन्यवाद के लिए, उसके पहले मैं पूछना चाहूँगा कल कौन अनुभव सुनाएंगे? कल कौन सुनाने वाले थे अनुभव? किसी ने बताया था ना कि सुनाने वाले हैं, या जरीना मैडम कल सुनाएंगे अनुभव, या कनेक्टिंग टू ऑडियो? या मुझे लगता है कल जरीना मैडम आप अपना अनुभव सुनाए कल। वुड लाइक टू वेलकम यू टुमारो जरीना मैडम। एंड one more person I want. कौन अपना अनुभव सुनाना चाहेंगे कल? चलो हमारे यहाँ भी कुछ है लोग यहाँ बैठे। कल कुमार सर तुम्ही सांगाल का अनुभव? चलो कुमार सर अपना अनुभव सुनाएंगे अपने बदलापुर से, ठीक है ना? इधर ही आ जाएंगे बोलते। चलो अच्छी बात है। तो कुमार सर का अनुभव है और हमारे जरीना मैडम, आई एक्सपेक्ट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस टुमारो। बी रेडी, ओके? थैंक यू वेरी मच। नाउ वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वैशाली मैडम, वो हमारी स्पोर्ट्स टीचर है, तो आप सबका धन्यवाद करेगी। या वैशाली। सर धन्यवाद सर, मोजेस कोलेट सर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। हेलो सर। या वेलकम। गुड इव्हिनिंग इच एव्हरीवन। सर धन्यवाद, आज मला सर्वांचे आभार मानायला संधी दिल्याबद्दल। आजचा दिवस वी फॉर अल्फाबेटवर होता, त्याच्यावर तुम्ही विजन ह्या विषयावर बोललात।
माहिती दिली. आमच्या समोर रोज नवीन नवीन विषय मांडतात, त्याचे विश्लेषण करतात. आजचा 22वा दिवस होता. 21 दिवसांचे 21 तास कसे गेले हे कळलेच नाही. अतिशय सुंदर नियोजन करतात. या सगळ्या गोष्टींचा आमच्या आयुष्यात बदल होत आहे. म्हणून राजकुमार कोल्हे सरांनी ते मी आभारी मानते. JMF सेक्रेटरी मॅडम प्रेरणा कोल्हे मॅडम ह्यांचे योगा आणि प्राणायाम तेही वेगवेगळ्या प्रकारचे परिणाम आमच्या शारीरिक स्वास्थ्य यावर होत आहे. या सगळ्या बदलांमुळे मॅडमलाही धन्यवाद. आमची टेक्निकल टीम यांनाही 26 दिवसांच्या कार्यक्रमाची महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, त्यांनाही धन्यवाद. माझ्या जीवनात महत्त्वाची माणसे भेटली असतील तर ती म्हणजे सर आणि मॅडम. तुम्ही एक मोठा JMF परिवार दिला आणि या परिवारातील सर्वच सदस्य प्रेमळ आहेत, त्यामुळे जीवन सुखकर झाले आहे. यापुढेही असेच राहील यात तीळ मात्र शंका नाही. धन्यवाद सर, मॅडम आणि JMF परिवार. थैंक यू वेरी मच. कल मिलेंगे ठीक 4 बजे. तब तक आप सबका इंतजार रहेगा मुझे कल मिलने का. तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको. शब्बा खैर, खुदा हाफिज. बहुत बहुत शुक्रिया.